the most important formula of this chapter is L equal to I omega, and the rule is conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. And when I say conservation of angular momentum, I should write L equal to constant, L equal to constant, and I omega is equals to constant. ठीक है, I omega equal to constant. ठीक है, based on this you can write using this equation you can write in two situations we have. Let's take, we have a disk in case 1. In case 1 we have a disk which is rotating about this axis, okay, which is rotating in this direction, for example in this direction rotating, and somebody is standing at the corner. Maybe one student is standing at the corner, just at the corner. So, and what is the radius? What is the radius? Radius is r. Radius is r. Clear? Now, let's say radius is 2 meter and the mass of this boy or is m equal to 50 kg. Okay, and mass of disk is, let's say 30 kg. Okay, I'm taking random values. Clear? This is the first situation. Now it is rotating with some omega. It is going in a, like it is rotating about this axis. So this is rotating with some omega right now. Let's say omega is, it is rotating with 2 rotation per second. 2 rotation per second, that means it is a frequency. 2 rotation per second means it is a frequency. Okay? This is the first situation. And now similar situation, case number 2. Case number 2, when the same disk having the radius r equal to 2 meter, but this time it is rotating with some omega. I don't know what omega is. Here omega, if you want omega in this case, you will write this formula 2 pi f. Remember this, huh? This is the formula for omega. But every time, many a time in the question, they used to give what? They used to give frequency. Rotation per second, cycle per second, or revolution per second, like that. Then you have to convert. Maybe it is radian per second given, na? Then you can use directly. Okay? Now what they are saying now the student r equal to 2 meter. Now they are saying the student standing here somewhere of same mass, obviously the same student. Now this student travels to the point B. Earlier he was at A. Now he traveled towards B. Okay? So in case 2, student travels from point A to point B. Is that okay? Okay? And the same disk is there, which is rotating about this axis. Okay? Same radius, r is also same. But earlier the student was standing at A. Now student reaches to B. B is 1 meter away from the center now. 1 meter away from the center. Is that okay? Same disk we have. So same mass 30 kg. Okay? But this time I don't know this omega. So they are asking, when student travels from A to B, find out
find out. So the question is, when, yeah, if student travels from point A to B, point A to B, then find omega of the disk, and that omega is omega 2. That omega is omega 2 of the disk. Is that okay? अच्छा तुम बताओ, खुद सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट, विल देयर बी एनी चेंज इन ओमेगा और नॉट? कल जो सिखाया था उसके हिसाब से, कल जो सिखाया था बताइए। एक डिस्क है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क? टेल मी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ऑफ डिस्क 1/2 mr square, isn't it? So mr square, let's say this one. Is that okay? Now as a boy or a student we are taking, ठीक है, as we are taking a student, so student we can consider as a point object, ठीक है, because they are not saying anything, they are giving only point A. The student is standing at point A, so they are saying total mass is at A. So that means the student can be considered as first point. Second point, student can be considered as पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। तो अभी कहां पर है स्टूडेंट? केस 1 में कहां पर है? ए पर। इज दैट ओके? ये सब लिखना नहीं होता एग्जाम में, ये सब, ये जो मैं लिखा रहा हूं ये समझाने के लिए लिखा रहा हूं बस, ठीक है। नो नीड टू राइट इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं। इज दैट ओके एवरीवन? यहां लिखूंगा मैं, जो एग्जाम में लिखना है वो यहां लिखूंगा, पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है। नाउ इज देयर एनी डाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय कितना हो जाएगा जरा बताइए, इफ इट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय और अ स्टूडेंट, लेट्स से मास ऑफ द डिस्क डी, ठीक है, md। सो लेट्स से मास ऑफ द स्टूडेंट ms, बताइए कितना होगा जरा बताइए। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टूडेंट अबाउट सेंटर O, अबाउट सेंटर O? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए? फॉर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट द आंसर विल बी mr square. So what is the mass? Mass is ms, mass of the student, into r square means radius of the disk right now, because the boy is at the circumference, Is that okay? So you have moment of inertia of the disk, you have the moment of inertia of the boy. Is that okay? Is it changing? क्या boy का inertia change हो रहा है जरा बताओ? डिस्क का तो नहीं होगा ना, डिस्क तो डिस्क है, डिस्क का चेंज हुआ क्या आधा रेडियस कर दिया डिस्क का? Is there any change in the radius of the disk? Is there any change in the mass of the disk? तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क नहीं चेंज होगा, लेकिन बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है क्या? बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉय इज चेंजिंग और नॉट? व्हाई इट इज चेंजिंग देन? बिकॉज इट इज कमिंग क्लोजर टू द एक्सिस. दिस इज एक्सिस एंड इट इज कमिंग क्लोजर टू द एक्सिस. इज दैट ओके? समझ में आया? तो चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, देखो ध्यान से, एक बात समझो अच्छे से। Here the system is, the total moment of inertia कितना होगा जरा बताइए। If I write I1 in case 1 moment of inertia, in case 1 moment of inertia, तो मैं दोनों लिखता हूं अलग अलग। In case 1, case 1 means boy is standing at circumference, student is standing at circumference. So what is the moment of inertia in one case? I1 is moment of inertia of the disk plus moment of inertia of student, and both should be from about which axis? About the axis passing through O. That means axis of the disk, Is that okay? Is that okay everyone? चलिए बताइए, what is the moment of inertia disk right now? 1/2 m disk into r square plus 1/2 m of student into r square, because student is also at r, na, so that's why the value will be m of mass of the student into r square. It should be half or not? नहीं होगा, half नहीं होगा, ठीक है, only mr square, because it is a point object. कभी डिस्क होता, अगर रिंग होता है mr square, डिस्क होगा तो ये स्फीयर होगा तो 2/5 mr square, like that.
चलिए वैल्यू रखिए बेटा, सॉल्व करिए। 1/2 व्हाट इज द मास ऑफ द डिस्क? 30। डिस्क तो 30 है ना, इट इज 30 एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज 2, सो 2 स्क्वायर प्लस मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ द स्टूडेंट इज 50 इंटू 2 स्क्वायर। चलिए दिस इज 15, दिस इज 15 एंड इंटू 4 प्लस 50 इंटू 4, हाउ मच? 60 plus 200, so total moment of inertia is 260 kg meter square. This is I1. Is that okay or not? बताइए, समझ में आया? ऐसे निकालना, सिचुएशन 1 का I1 चाहिए मुझको, ठीक है। सिचुएशन 1 मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट, एंड हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ मेनी थिंग्स आर रोटेटिंग, यू नीड टू चेक इन द क्वेश्चन कि कितने लोग घूम रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का घूम रहा है या स्टूडेंट है एक, और एक डेस्क है, दोनों घूम रहे हैं, तो दोनों का मोमेंट इनर्शिया ऐड करके करो, ठीक है। समझ में आ गया? जरा ओमेगा दिया हुआ है क्या? ओमेगा 1 2 पाई एफ, सो 2। अच्छा एक और चीज होती है इसमें, ओमेगा पूछा है इसलिए 2 पाई एफ लिखना पड़ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो जरूरत ही नहीं है, 2 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है। 2 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा ना, सो इन दैट वे। नहीं समझ में आया? 2 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन। अच्छा इसको हम बाद में करेंगे, अभी मैं समझा दूंगा कैसे 2 पाई दोनों तरफ से कटेगा, ठीक है। मेरे पास है वो, मतलब विल डू दैट। चलिए बताइए, सो दिस केस, दिस साइड इज सिचुएशन 1, तो केस 1 के लिए मिल गया ना तुमको दोनों चीजें। व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी इज 2 rps, so it will be 4 pi. Is that okay everyone? Radian per second. Can you find out I2 in case 2? बताइए केस 2 में, बताइए जल्दी से, केस 2 में बताइए what will be the, again डिस्क प्लस स्टूडेंट, डिस्क प्लस, बट वो किस में होगा? दूसरे सिचुएशन में। क्या सिचुएशन दूसरा? व्हाट इज द नेक्स्ट केस? नेक्स्ट केस क्या हो गया बताओ? डिस्क का चेंज हुआ क्या? नो, डिस्क तो सेम रहेगा। बॉय का चेंज हुआ है बस, तो बॉय का चेंज करके लिख दो। जल्दी करो, कितना आया? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? व्हाट विल बी द आंसर? I2 निकालना है, आई नीड I2 नाउ। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, सेम चीज, लेकिन अब की बार क्या चेंज होगा? ये तो चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होने वाला है? कौन सा आर? बॉय कहां पर है? हाँ, बॉय कहां पर आ जाएगा? तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, mdr स्क्वायर प्लस, इसको ध्यान रखना है, स्टूडेंट इंटू, इसमें लिखना है r स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है? अब की बार r चेंज हो गया है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी? अब रेडियस नहीं है भाई, अब कैपिटल R नहीं है डिस्टेंस, अब स्मॉल r है, तो ये स्मॉल r कितना है? 1। स्मॉल r कितना है? 1। समझ में आया? सो जल्दी रखो, इसका तो मैं सीधे 60 लिख देता हूं, प्लस 50 इंटू 1 स्क्वायर, सो कितना हो गया? 60 प्लस 50, कितना आ गया बेटा? केजी मीटर स्क्वायर। I2 इज ओके। ओमेगा 2 है क्या हमारे पास? ओमेगा 2 ही तो बताना है, वी नीड टू फाइंड आउट ओमेगा 2 ना। सो नाउ कैन आई यूज कंजर्वेशन नाउ? कोई बाहर से फोर्स लग रहा है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? तो लड़का तो बस चल के आया ना, तो डिस्क पे लगाएगा, डिस्क उस पे लगाएगा, हो गया काम। नथिंग इज देयर, ठीक है। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? सो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ बस, तो यूजिंग, अब लिख दीजिए, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक क्वेश्चन 100% आएगा इसी फॉर्मूले के ऊपर, एक क्वेश्चन 100% आएगा, मार्क कर लो। कोई भी पेपर बनाए, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना? 260, ओमेगा 1 कितना? 4 पाई, इक्वल टू I2 कितना? 110 इंटू ओमेगा 2 चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ओमेगा 2 निकाल पाएगा, बहुत मुश्किल हो गया है ये क्वेश्चन अब। हाँ, निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पा रहे ना? इतना पाई हो गया, ठीक है।
ये आ गया हमारा रेडियन पर सेकेंड। इसको सोल्व करें, 11 से डिवाइड कर लें बेटा, 11 से 9.9 आएगा, 99, 99 तो 5 बचेगा, एंड 5 तो 4 आ जाएगा, है ना, 9.4, फिर बचेगा 6 तो फिर आ जाएगा 5, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चेक इट आउट, क्या मैंने डिवीजन सही किया है? हाँ, आजा एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करो। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन मान लो यही हो गया, सेकंड क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट। इफ स्टूडेंट, ये तुम्हें करना है अब, इफ स्टूडेंट travels from A to O directly, then find omega, find angular velocity of, बेटा एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता हूं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं, अकॉर्डिंगली यू नीड टू जस्ट, अगर मान लो यहां पे अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा क्या करोगे? 2 पाई से डिवाइड करोगे उसको। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या करोगे बताओ? F2 इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 पाई, याद रखना। ठीक है, यू कैन रिमेंबर इट, F2 इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 पाई, यू कैन डिवाइड इट। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ the disk, this question you need to do। और अगर ये क्वेश्चन तुमने कर दिया, इसका मतलब तुम जो मैंने सिखाया है यू लर्नड इट। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा है, स्टूडेंट कहां जा रहा है? स्टूडेंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू सेंटर, वो सेंटर पे जाके खड़ा होगा। ठीक है, वो कहां जाके खड़ा हो गया? सेंटर पे, एक्सिस पे जाके खड़ा हो गया। आर कितना हो गया भाई चुआंग? आर कितना हो गया सेंटर पे जाके खड़े होने से? आर कितना होगा अगर कोई सेंटर पे जाकर खड़ा हो जाए तो? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस कितना रह जाएगा, है ना? कितना जाएगा? 0। कितना आएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बॉय का? कितना आएगा? बस तो समझा दिया मैंने। लो अब कर दो फटाफट। क्या करना है? सेम, पहले ये बनाओ, ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम आएगा ना केस 1, ये केस 2 बना दो बस। तो केस 2 में क्या करोगे जरा बताओ? आर की वैल्यू कितनी रखोगे? आर का वैल्यू कितना रखोगे? 0। जल्दी सोल्व करो फटाफट, मुझे पता है तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, सिचुएशन में कहां था? पहले सिचुएशन में कहां था? ए पर। अब कहां पहुंच गया? दूसरे में बी। अब की बार सिचुएशन क्या है कि पहले यहां था और अब की बार सेंटर पे पहुंच गया। डायग्राम बनाओ पहले, एवरीवन ड्रॉ द डायग्राम फॉर द सिचुएशन नाउ। डायग्राम बनाओ पहले सिचुएशन के लिए। तो सेम डायग्राम, अब की बार यहां से ये बॉय यहां से यहां सेंटर पे चला जाएगा, एट द सेंटर। तो आर हो जाएगा इसके लिए 0। आर कितना हो जाएगा? 0। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करना है, बस क्या करना है? तो ये केस 2 जो लिखा है ना, ये केस 2 देखो, ये तो सेम रहेगा ना, केस 1 तो सेम है। केस 2 में क्या करना है? ये आर का वैल्यू 0 रखना है। क्या रखना है? तो ये सब 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? बस 60। फिर बाद में यूजिंग कंजर्वेशन दोनों को बराबर करके ओमेगा 2 निकालना है। समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं उल्टा कर दूं कि पहले सेंटर पे खड़ा था, अब जाके सरकमफ्रेंस पे खड़ा हो गया जाके, तो तब भी कर पाओगे क्या? पहले सेंटर पे खड़ा था और बाद में कहां चला गया? तो क्या जो दूसरा सिचुएशन था वो पहला बन गया? पहला दूसरा बन गया, तो बात तो एक ही है ना। तो अगर सरकमफ्रेंस से सेंटर पे आ सकता है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे भी जा सकता है। समझ में आया? अगर तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, उसमें घबरा नहीं जाना उसमें। ठीक है, नो नीड टू बी पैनिक। If they are saying initially boy or girl standing at the axis and now they travel to the circumference, तो घबराने की जरूरत नहीं है। What you need to do? Just apply the formula.